السلام علیکم، ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سمرا نور۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر مبینہ قاتلانہ حملے کا قیدی کرم دین ساہیوال جیل میں انتقال کر گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا گزشتہ روز کا فیصلہ متوقع تھا، پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا، اب بھی کریں گے۔ نیب ترامیم کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ نے نیب کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کا شیڈیول معمول پر نہ آ سکا، آج بھی 10 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ آلسن کو اخلاقیات سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر 3 برس کی سزا سنا دی گئی۔ سعودی عرب سمیت 34 ممالک کی فوجی مشقیں برائٹ سٹار 2023 اختتام پذیر ہو گئیں۔ سابق بھارتی کرکٹر اور پی جے پی کے رہنما گوتم گمبھیر نے ایشیا کپ میں پاکستان کے سری لنکا کے ہاتھوں سپر 4 مرحلے میں شرکست پر بابر اعظم کی کپتانی پر سوال اٹھا دیے۔ سعودی عرب کی التائی فٹ بال کلب کے ڈیفینڈر رابرٹ باؤڈ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ میزبان اور اداکارہ صنم جنگ نے شادی کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں اہم انکشافات کر دیے۔ اور بالی ووڈ اداکارہ زینت امان نے تمام خواتین کو مالی اور معاشی اعتبار سے خود مختار ہونے پر زور دیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔ I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل۔ اپیکس گروپ آف کالجز پاکستان کا پہلا نیشن وائڈ نیٹ ورک آف کالجز، ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی انٹرمیڈیٹ، گریجویشن اور ماسٹرز کی کلاسز کا جلد آغاز ہو رہا ہے۔ آ رہا ہے جلد آپ کے شہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات میں آپ کو سب سے پہلے آگاہ کریں۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر مبینہ قاتلانہ حملے کا قیدی کرم دین ساہیوال جیل میں ہلاک ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساہیوال نے قیدی کرم دین کی موت کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے جوڈیشل مجسٹریٹ کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ واضح ہے کہ 50 سالہ کرم دین کو عمر قید کی سزا انسداد دہشت گردی کورٹ سے ہوئی تھی اور جیل میں 18 سال سے قید بھگت رہا تھا۔ گزشتہ روز جیل میں اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا، اسے ٹیچنگ ہسپتال لایا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ پولیس نے نیش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی جو صادق آباد لے گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا گزشتہ روز کا فیصلہ متوقع تھا، پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا ہے اور اب بھی کریں گے۔ لاہور میں ندیم افضل چند کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ سی ای سی اجلاس میں سب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں معاشی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سی ای سی میں کے پی بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت اضافہ کیا گیا تھا، غریبوں کو ریلیف دینا چاہیے، امیروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری مزید کچھ دن لاہور میں قیام کریں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کے مسائل ہیں، نیب کو سیاسی انتقام اور پارٹیوں کو توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ ہماری حکومت میں کوئی بھی سیاسی قیدی موجود نہیں تھا، اگر ہم بھی نئے اتحادی بنائیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بھی بے ساکھیوں کی تلاش نہیں کی، کچھ پارٹیاں ہمیشہ بے ساکھیوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نیب ترامیم کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کے نیب کے اہم اجلاس کو طلب کر لیا۔ چیئرمین نیب پیر کے روز نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نیب نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اکبر تارڑ کو قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل تعینات کر دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر نے مستعفی ہونے کے بعد بھی یہ عہدہ خالی نہ تھا۔ قومی احتساب بیورو کے پروسیکیوٹر جنرل سید اصغر حیدر کا استعفیٰ 14 ستمبر کو منظور کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ
गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम के 10 में से 9 शिकों को कलअदम करार दे दिया था। आगे बढ़ें, आपको बताएं कौमी एयरलाइन PIA के शेड्यूल मामूल पर ना आ सका, आज भी 10 परवाजें मंसूख कर दी गईं। एविएशन ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने 10 परवाज़ों के शेड्यूल में रद्दोबदल की और कई ताख़ीर का शिकार रहीं। कराची से तुर्बत आने और जाने वाली 2 परवाजें PK 501 और PK 502 मंसूख कर दी गई। ज़राए का कहना है कि लाहौर के लिए अप एंड डाउन की 2 परवाजें PK 302 और PK 303, जबकि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली वापस आने वाली परवाजें PK 367 और 359 मंसूख कर दी गई। इसके अलावा कराची से सक्कर और सक्कर से कराची जाने वाली 2 परवाजें PK 336 और PK 337 भी मंसूख कर दी गई। कराची से फैसलाबाद की परवाज़ PK 340 और फैसलाबाद से कराची के लिए PK 341 भी मंसूख कर दी गई। ज़राए ने बताया है कि PI ने इस्लामाबाद में जद्दा के लिए परवाज़ PK 741 4.5 घंटे की ताख़ीर से रवाना हुई, जबकि इस्लामाबाद से गिलगित के लिए PK 601 भी ताख़ीर का शिकार हुई। इस्लामाबाद से कराची के लिए PK 301 में 2.5 घंटे की ताख़ीर हुई है और लाहौर से रियाज के लिए PK 725 3 घंटे की ताख़ीर से रवाना हुई, जबकि इस्लामाबाद से गिलगित के लिए PK 305 मुकर्ररा वक्त से 50 मिनट पहले चली गई। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन को अखलाकियात से मुतल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन पर $93,400 जुर्माना भी आयद किया गया है। रिचर्ड ऑल्सन ने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराज़ जुर्म कर लिया था। समाअत के मौका पर आपदीदा 63 साला साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन ने कहा कि उन्होंने गलतियाँ की हैं और इसके संगीन नताइज भी निकले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अमेरिका पॉलिसी साजों पर असरअंदाज होने के लिए कतर हुकूमत की मदद की और अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों की पर्दापोशी के लिए के इकदाम भी किए। मीडिया के मुताबिक ऐसे इकदाम में अहम ईमेल्स डिलीट करना और इंटरव्यू के दौरान FBR से झूठ बोलना भी शामिल है। अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में सफ़ीर की हैसियत से खदमात सर अंजाम देते हुए रिचर्ड ऑल्सन ने एक पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेसमैन से भी बहुत फ़ायदे हासिल किए। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं सऊदी अरब समेत 34 ममालिक की फ़ौजी मशक़ें ब्राइट स्टार 223 से इख्ताम पजीर हो गईं। खैबर रसां इदारे के मुताबिक मिस्र के मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस में सऊदी अरब समेत 34 मुल्कों की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें ब्राइट स्टार 2023 से इख्ताम पजीर हो गई। इस हवाले से सऊदी आर्मी ट्रेनिंग अथॉरिटी के सरबराह मेजर जनरल आदिल ने कहा है कि सऊदी फ़ौजी दस्तों से मुकर्ररा तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, ख़ुसूसन बैनुल-अक़वामी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, साइबर सिक्योरिटी, बहरी अमन, मिसाइल डिफेंस ऑपरेशन में ताउन और मुश्तरका बैनुल-अक़वामी अस्करी ऑपरेशन के नफाज से मुतल्लिक़ तजर्बात का तबादला ख्याल किया गया। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं साबिक भारतीय क्रिकेटर और PJP के रहनुमा गौतम गंभीर ने एशिया कप में पाकिस्तान के श्रीलंका के हाथों सुपर 4 मरहले में शिकस्त पर बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठा दिए। एशिया कप के ब्रॉडकास्टर को दिए गए इंटरव्यू में साबिक भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने मैच के इख्तितामी ओवर्स में बाबर आजम की कप्तानी पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा कि जमान खान और शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, लेकिन बाबर आजम की फील्ड प्लेसमेंट मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि जब से उस रफ्तार से शाहीन और जमान गेंदें करवा रहे तो बाबर आजम ने लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को ऊपर क्यों नहीं बुलाया। इस तरह कोशल मेंडस और समारा कर्मा की सेंचुरी शराकत के दौरान बाबर ने पार्टनरशिप तोड़ने की बजाय पार्ट टाइम बॉलर्स को बॉलिंग करवाई। गौतम गंभीर ने कहा कि जब कोई पार्टनरशिप बनाना शुरू करता है तो कप्तान अपने एक्टिव बॉलर्स को ओवर देता है, लेकिन बाबर आजम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि बाबर आजम को मशवरा दिया कि दरमियानी ओवर्स में ज़्यादा जारहाना अंदाज विकेटें लेने पर तवज्जो मरकूज़ करना ही आपको मैच जितवा सकती है। बाबर आजम को अपनी कप्तानी में बेहतर करना होगी, क्योंकि वनडे क्रिकेट ऐसी नहीं है कि आप गलतियां करते रहें। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं सऊदी अरब के अल्ताई फुटबॉल क्लब के डिफेंडर रॉबर्ट बाउर ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सऊदीया क्लब के डिफेंडर रॉबर्ट बाउर ने मदाहों को आगाह करते हुए तस्वीर शेयर की है जिसमें वो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने पैगाम में इस खुशगवार तब्दीली का जिक्र करते हुए लिखा है कि अपनी अहलिया और इसके ख़ानदान के हमरा दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी मदद और हौसला अफजाई की। जर्मन फुटबॉलर रॉबर्ट बाउर सऊदीया प्रोफेशनल लीग में अल्ताई FC के नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो 1 साला मुआहदे के बाद खबरों की जीनत बने।
शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, मेज़बान अदाकारा सनम जंग ने शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली के बारे में अहम इंकशाफात कर दिए। उन्होंने हाल ही में एक शो में अब शिरकत की, जहां उन्होंने निजी ज़िंदगी से जुड़े कई सवालात के दिलचस्प अंदाज में जवाब दिए। उनसे दौरान शो मेज़बान की जानिब से सवाल किया गया कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद कोई तब्दीली नहीं है। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मैं शादी के बाद भी अपने वालिदैन के घर पर रहती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाँ, एक चीज़ है कि जिसका मुझे शादी के बाद एहसास हुआ कि इस बंधन में बनने से पहले तो यूँ लगता है कि मेरे घर पर सब काम जादुई तरीके से हो जाते हैं, कुछ भी खुद नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब अगर घर का एसी भी ख़राब हो जाए तो इसे ठीक करवाने के लिए खुद कॉल करके किसी को बुलाना पड़ता है। इनका कहना था कि मैं काफ़ी खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे शादी के बाद भी अपने वालिदैन के साथ रहने का मौका मिला और अभी तक किसी बड़ी तब्दीली से नहीं गुजरी। वाज़ेह है कि अदाकारा सनम जंग ने सैयद अब्दुल कसाम जाफरी नामी लड़के से 2016 में शादी की थी। अब इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आलिया जाफरी है। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, बॉलीवुड अदाकारा ज़ीनत अमान ने तमाम ख़वातीन को माली और मुआशी एतबार से खुद मुख्तार होने पर जोर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ीनत अमान ने एक चैट शो में बात करते हुए कहा, ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार होना चाहिए, क्योंकि खुद इंसारी इन्हें अपने लिए सही फैसला करने में मदद फराहम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब ख़वातीन के पास माली वसाइल और मौक़े होते हैं तो वो तमाम तर रुकावटों पर काबू पा लेती हैं, अपने शौक़ को आगे बढ़ा सकती हैं और अपने मकासद और ख्वाबों को हासिल करने के लिए इक़दाम उठा सकती हैं। इस तरह अपने एक नए और बेहतरीन वयन में ढल जाती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।